So, dear students, this is the question paper of mathematics and science, गणित एवं विज्ञान. सो हम एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये मैथ का क्वेश्चन है. इसमें हमारे अंशुमान सर जुड़े हुए हैं. आज हम दोनों लोग अंशुमान सर क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे और मैं उसका तुरंत सोल्यूशन बताऊंगा, उसका आंसर दूंगा. तो यस अंशुमान सर, वेलकम टू अवर सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल. आवर ग्रुप इज Good आवर morning. सरकारी Good नौकरी. morning, sir. यस यस. The question 31 is which of the following number is written in the standard form? यस. सो निम्न में से कौन सा नंबर मानक संख्या में लिखा गया है? इसमें है आपका फर्स्ट ऑप्शन इज 83.7 into 10 की पावर माइनस 9. सेकंड ऑप्शन इज 45 into 10 की पावर 3. एंड थर्ड ऑप्शन इज 8.5 into 10 की पावर माइनस 12. एंड फोर्थ ऑप्शन इज 0.6 into 10 की पावर 15. very good. So now can you see here? Are you able to see the screen? Yeah. So standard form means what? Scientific form. Answer where you have 8.5. So this is the standard form where we have decimal point 8.5 multiplied by 10 to the power minus 12. This is the standard form, scientific form of the writing the numbers, right? Okay. Next question. Decimal in this answer number 1, the decimal is after two numbers. So this is not proper. Here there is no decimal only, and here it is correct, and here it is 0 point. So this is also improper. This is the proper method. Yes. Question number 32. Sir, can I ask one question? Yes, please. Is it possible? Is it possible after the sum lot two numbers is mandatory? Yes, after Yeah. one digit, after one digit, after one non-zero digit, after one non-zero digit, you should put decimal and you should put this 10 to power. All the other digits will come into 10 to power the number of zeros. Like It can be either positive power or negative power. yes. If the number is in zeros like 8,400 like that, so when you put decimal, it will become 8.5 or 8.4 multiplied by 10 to the power minus 3, sorry, plus 3 plus 4 like that, right? Okay. Yes. Next question. 32 question number. In a pentagon ABCDE and angle A equal to 2x plus 9 degree, angle B equal to 2x plus 1 degree, angle C equal to 2x minus 1 degree, angle D equal to 2x plus 5 degree, and angle E equal to 2x minus 4 degree. Find the value of 2x plus 10. Yes. So First of all, we should know how the total sum of angle is calculated. Sum of angles. Sum of angles of a polygon, of a polynomial. Polygon. So suppose that in a triangle, what is the sum of the angles? In a triangle, sum of 180 degree. Yes. So n minus 2 times pi. Put n is equal to 1. N is equal to n is the number of sides. So n is equal to 3. 3 minus 2 pi means 180 degree. If you put n is equal to 4. 4 minus 2 2 pi. 3 pi. Yes. So if you put 5, it will be 3 pi. 3 pi means 540 degree. 540 degree. Yes. So 5. Yes. So total sum. Now angle A how much? I want to show because I want to solve question very properly so that all of you can easily understand. So angle A how much? 2x plus 2x 9. plus 1. Angle B is how much? 2x plus 1 degree. Angle C is how much? 2x minus 1 degree. Angle D is how much? 2x plus 5.
2x plus 5, right? So angle E is how much? 2x 2x minus minus 4. 4. So sum of all these angles will be how much? 540. So can you help me in solving this? Sum of the all angles. So if I don't go in the detail, I'll do here only. So just see my finger. So see my cursor. 2x plus 9, 2x plus 1, 2x minus 1, 2x plus 5. So 2x times 5 means it became 10x. And minus 4 plus 9 plus, so plus 5 9 एक plus 6 10 10 plus 5 6 6 plus 4 10 5 plus 10 10 में and 0 6. 0 हो जाएगा. How much 10 it? minus 10 10 minus 10 0 हो जाएगा. एक प्लस 10 है, एक Yeah. माइनस 10 है. Yeah. So 10x minus 10, right? यानी 10x इक्वल टू 540 यानी 54 डिग्री. Yes. Very good. So you are intelligent now. So I'll solve it now. Total angle became 10x minus plus 10. 10x 0. 10x plus 10 minus 10 0. Okay. It's equal to equal 540 to degree. 540 and X x became equal to 54 degree. 54 degree. So you want to find the value of how much? 2x plus 10. What is the answer? Yes, Tell me. plus 10. 120, जब वो तो पाँच दो 118. पंचे 10 तो 118 डिग्री. Very good. 1 Wonderful. minute. So yes, cheers. Yes, you have done it. Next question. Next question: which of the following of the of the Most most appropriate feature of mathematics textbook in a elementary level? Which one of the following is the most appropriate feature of mathematics textbooks of elementary level? Option number 1. Concept should be presented from concrete to abstract. Number 2. Language of the book must be highly precise and technical. Number 3. Books must contain a lot of similar questions to practice. Number 4. Concept should be presented from complex to simple. Tell me, what is the for the mathematics textbook? Elementary means basic level, simple level, elementary level. What is the most छोटे बच्चों के लिए for small children like for primary grade बच्चों के लिए क्या होना चाहिए? बुक्स की क्या होना चाहिए? बुक्स की क्या होना चाहिए? क्वालिटी की कैरेक्टरिस्टिक. Concept should be presented from concept should be presented the concrete to abstract. The language of the book must be highly precise and technical. So Book must contain a lot of simpler question to practice, and concept should be presented in complex to simple. I think number C3 is the only quite appropriate feature because books must contain the lot of similar questions to practice, right? In mathematics. See, concrete to abstract, these small children, they can't understand what is concrete, what is abstract, right? The language of the book must be highly precise and technical. No भैया बच्चों को क्या पढ़े बच्चों को क्या मालूम पड़ेगा भाई कि क्या प्रिसाइज है क्या टेक्निकल है. पॉइंट 3 क्या है? बुक्स मस्ट कंटेन ए लॉट ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस. ये है बच्चों के लिए भाई बच्चों को क्वेश्चन चाहिए ताकि क्वेश्चन बच्चे करें प्रैक्टिस सिमिलर क्वेश्चन करें प्रैक्टिस. A concept should be presented from complex to simple. The complex is simple to complex. Simple, complex, simple, simple to complex. किताबों में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे समान प्रश्न होने चाहिए. ये सही है. Yes. Question number 34. So let's now proceed further. Question number 34. Very nice. Nice to see that how nicely you are solving questions. Okay. Question. So I will move further. I will remove all these written things. Clear all drawings. Yes. No. Question number 34. Yes, please read. The sum of 1000 becomes 9500 at the 7.5 per annum in a X year or at the simple interest. What will be the amount of sum in a sum same time in 20% AM per PA? Per annum. If the per annum if interest is compounded yearly. Yeah, same question. This is Same yesterday we saw. time ago.
Same So cost type of question I have done. yes, yes. So now try to understand this question. So what is sum of means what is principal value P is equal to 8,000. लोग फोन कर रहे हैं। हरे कृष्णा, गौतम सखा प्रभु की जय हो। दंडवत प्रणाम प्रभु, कैसे हैं? थोड़ा अभी विलम्ब हो गया, शिफ्ट भी हो नहीं पाए क्योंकि वो हमारे श्रीमान चंद्र प्रभु ने बड़ा थोड़ा 1 महीना लगेगा, थोड़ा उनका काम चल रहा है घर पर। तो उनका उनका घर अभी खाली नहीं हुआ, मतलब जो फ्लोर खाली, इसलिए हमने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया शिफ्टिंग का। वैसे 15 तारीख को शिफ्टिंग करना था, 15 तारीख को, अभी 30 तारीख हो गया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो गौशाला में और कौन कौन है वहाँ? हाँ ठीक है, भक्ति का आनंद लीजिए, भक्ति करिए, आम खाइए, भक्ति का आनंद लीजिए। गौशाला में नहीं आ पा रहा उधर, लेकिन कम से कम आप लोग, भाई थोड़ा दूर ज्यादा हो गया तो भी मतलब 10-15 किलोमीटर तो भी पहुंच जाऊं। ये थोड़ा पूरा 30-35 पड़ेगा, पूरा 30-35 से ऊपर ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि भगवान जल्दी ही कृपा कर रहे हैं, जल्दी पास में आएंगे तो फिर आप लोग कभी भी इस्कॉन कानपुर आइए तो फिर घर में रुकिए। सारी व्यवस्था आज, हाँ आज फेस्टिवल होगा भी, आ रहे हैं मंदिर पे इस्कॉन में आज शाम को। शाम को आप आएंगे क्या? बताना जैसा भी हो, क्योंकि टाइम निकालना, सब टाइम निकालना पड़ेगा आपको भी, आप लोग को भी दूर पड़ता है वहां से इस्कॉन। थोड़ा दूरी तो है लेकिन वापसी में होती प्रभु, थोड़ा बस एक और ये त्योहार काट लो प्रभु, बस ये त्योहार काट लो, फिर अगली बार से आपको समस्या नहीं होगी। अगली बार से कोई समस्या नहीं होगी, कभी भी आओ कभी भी जाओ। यस यस, वो मेरा उद्देश्य था, मेरा अभी कर नहीं पाया बहुत दिनों से, लेकिन मेरा पर्पस वही है। और वहीं पर फिर आगे वहीं जगह भी लेंगे और वहीं भक्तों के लिए बनवा, कोई भी आए कभी भी रुके, क्योंकि मंदिर में तो उतनी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, लेकिन ये कि हम बाहर कर सकते हैं अपने घर पे तो। यस तो बढ़िया, आम खाइए। और क्या वहाँ पर, क्या क्या वहाँ पर फसल क्या बोई गई है? अच्छा बढ़िया बढ़िया। तो माता जी भी आई है क्या? बच्चा भी, क्या बिटिया भी आई है? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है प्रभु। और बताइए। ओके, हरे कृष्णा। नौका विहार छूट गया प्रभु, हंसमान प्रभु। हाँ। नौका भक्त लोग मेरे दो इंतजार में हैं, प्रभु। बस ये कि मंदिर के पास रहने लगे, फिर लोग आएंगे रुके, मेरे होने से बड़ा। एक तो जैसे हम थे वहां को नॉर्म दे गौशाला में, कोई भी आए कभी भी रुके, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, कोई भी आए सबका स्वागत है। थोड़ा आप भी आप, हम्म। ना बोलो, आप शादी जल्दी कर लो यार, आपका जिंदगी थोड़ा बदल बदल जाएगा। आपके घर घर संपत्ति का कुछ सही यूज हो पाएगा सही से। आप अकेले हो तो आपके माता पिता के चक्कर में कुछ आप कुछ कर भी नहीं पाते, कुछ मतलब बोल नहीं पाते हो। और चलो खैर, बात बात करते हैं टॉपिक पर। यस, सो प्रिंसिपल हम्म। वैल्यू इज, प्रिंसिपल वैल्यू इज, The sum of principal 8,000. यस, एंड इट बिकम्स व्हाट, अमाउंट इज हाउ मच? Amount is 9,500. यस, सो रेट हाउ मच? 7.5%. वेरी गुड यार, यू आर परफेक्ट पर्सन। ओके, इन एक्स टाइम हाउ मच टाइम इज, कितना है? एक्स ईयर्स, Time find out. राइट? एट सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोला? एट सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दिया गया है, ये गिवन है, ये किसमें, ये सिंपल इंटरेस्ट किसमें है? ये एस आई है, क्या है? समझो? ऐसा ही। हाँ, हाँ। तो इससे हमें हमें एन, हमें एक्स टाइम निकल आएगा, हमें एन जो है ना, एन हमारा टाइम जो है वो निकल आएगा। और इस टॉपिक का व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सम इन द सेम टाइम, तो टाइम निकालना पहले वाले से। तो प्लीज टेल मी व्हाट द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी Simple RT upon 100. पी
बी प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI into time upon 100. T/100, राइट? सो सो अमाउंट क्या बनेगा, अमाउंट क्या बन जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 9500 नहीं। P plus I. So put I here. So P common is the 1 plus RT upon, right? अमाउंट आपका है हाँ 9500, ये आपका 8000, ये 1 प्लस आर कितना है आपका 7.5, और टाइम कितना है आपका एक्स, एक्स अपॉन अपॉन 100। 100। यस, वेरी गुड। इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? ये जगह 800 19 upon 16, राइट? माइनस 1 इज इक्वल टू 7.5x. अपॉन 100। Yes, so 3 upon 16 multiplied by 100 upon 7.5 is equal to x. तो ठीक है, 40, ठीक है। तो x आ गया आपका 2. 5/2 Yes, 2.5, very good, 2.5। wonderful. So 2.5 is the time we have got it. For what purpose? We have got for time, so year, 2.5 साल, ठीक है। 2.5 में 2.5 साल, ओके, राइट ना। इस 2.5 साल में आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है उसका, बोलिए क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। 20% में क्या अमाउंट हो जाएगा, इसको हम हटाते हैं, ठीक है। आई एम रिमूविंग दिस मच, यस। नाउ आपको टाइम मिल गया है, जो आपने एक्स निकाला है वो है 2.5 ईयर्स, ठीक है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है भाई साहब। टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का, टेल मी। पहले PRT अपॉन 100 निकालेंगे तो P नहीं आपका 8000 हो जाएगा, R जो है भैया 20। भैया 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 भैया, कंपाउंडेड, कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड, पी कंपाउंडेड क्या होता है? तो टू टाइम 2 लेंगे ना यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, वो तरह नहीं, फॉर्मूला क्या है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का? 1 प्लस आर अपॉन 100 कंपाउंड प्लस की R अपॉन पावर, 100 की पावर, N पक्का? अपॉन। हाँ पक्का? हाँ। तो P हो गया आपका 8000। ये कितना है? 8000 1 प्लस आर कितना है? 2 20 आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ 20 है, इसमें 20 देना। यस यस, नया न्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, नया दे दिया, नया, ठीक है। कंपाउंड नया इंटरेस्ट। नया नया ROI है। यस, और ऊपर कितना है? 2.5, राइट? हम्म। ये तो है ना। तो 2.5 क्यों लेंगे जबकि इसमें लिखा हुआ है कि इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। जैसा उस दिन क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन ऐसा ही किया था ना जिसमें नहीं ये वार्षिक। नहीं नहीं, मैं बोलता आप जो बोल रहे हैं वो कैसा है, देखो। ईयरली का मतलब ये होता है कि एक्चुअली ये फार्मूला ना ईयरली बनाया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल का करेंगे ना। अभी आपको इसका प्रूफ, आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ, प्रूफ। वो प्रूफ आप समझ पाओगे क्या होता है, उसका प्रूफ है। सीआई का जो फार्मूला आता है ना, वो एसआई से आता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट से आता है। सिंपल इंटरेस्ट का जो हर साल का इंटरेस्ट है, हर साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देंगे। तो अगर ये ईयरली बोल रहा है तो हर साल का इंटरेस्ट, अगर वो हाफ ईयरली बोलेगा तो उसका हर हाफ ईयरली का इंटरेस्ट, मतलब अगर वो तिमाही बोलेगा तो हर तिमाही का इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड होगा जो वो 3 महीने के इंटरेस्ट निकालने के बाद जोड़ देंगे तो 3 महीने के बनेंगे स्लॉट, है ना। 3 महीने का स्लॉट। तो अगर ये ईयरली बोल रहा है तो यहाँ पर हम ईयरली कर रहे हैं। अगर ये होता, यहाँ जो एन लिखा है, एन क्या है? एन ये टी अपॉन कैपिटल टी होता है। मतलब क्या होता है कि टी जो है वो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स है, और कैपिटल टी होता है वो कंपाउंडेड किस में होता है। यहाँ ईयरली इसलिए यहाँ पर 1 रखा हुआ वैल्यू। अगर होता छमाही, अब होता 6, होता अगर हाफ ईयरली, तो वहां रखते हम क्या, 2, 2 रखते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर 2 है, वो 2 टाइम हो जाएगा। 1 साल में 2 छमाही है, 2 है ना, 2 छमाही। तो 1 साल में कितनी है? 2। ऐसे कोई बोले तिमाही, अगर बोले कि एवरी, अगर बोले क्वार्टरली,
तो क्वार्टरली में क्या रहेगा वहां पर, 4 रहेगा वहां पर। 2.5 अपॉन 4 करेंगे, 2.4 अपॉन 4 करेंगे। अगर वो बोले कि इट वॉज हाफ ईयरली, इट वॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो उनका 2.5 अपॉन क्या करते हैं बताओ, 2 करते हैं। समझे नहीं, ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको उसमें मतलब कैसा कंपाउंडेड जो है ना, पॉइंट ये ईयरली मतलब होता है कि 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल का इंटरेस्ट, 1 साल में इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, और वो उसको अमाउंट जो बनता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें जब एनुअली बोल रहा मतलब ये होता है कि 1 साल में इंटरेस्ट निकालकर उसमें जो ऐड करते हैं, जो अमाउंट बन रहा है वो 1 साल में बन रहा है। अगर उसको हम हाफ ईयरली बोल देंगे तो हाफ ईयरली में उसका इंटरेस्ट जो आएगा उस इंटरेस्ट को जोड़ देंगे और उसको बना देंगे नेक्स्ट अमाउंट, नेक्स्ट बनेगा अमाउंट, वो हाफ ईयरली का जो अमाउंट होगा वो बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकंड हाफ ईयरली, राइट। तो कैलकुलेट करना इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली है कि ईयरली है, इसका बहुत फर्क पड़ता है फार्मूले पर, राइट। यस, सो 8,000 5/6 2.5, राइट। 2.5 को सिंप्लीफाई कर लें, 5/2 हो जाएगा। 5.2 जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद के बाद 8,120 into 1, 5 16, 16 सौ ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9,620, फिर 21, जीरो 2, ठीक है। 11 11 11 11 11, अब 11 का निकाला हमने तो 11 120 इंटू 30, ठीक है, तो 1/2, 10, तो 11 2, 27621 और 1672। आंसर इज फोर्थ वन। मतलब यहाँ 1/2 से क्या मल्टीप्लाई किया हाँ है ना, ये क्या हो गया? 2.5 में 2 साल तो ऐसे हो गया, और अगला 0.5 में अगला हाफ ईयर है, अगला आधा साल है। 2.5 में 2 साल तो समूचे, और तीसरा सा क्या, 0.5 मतलब 1/2 ईयर। ये यहाँ पे आपने ये 8,000 5/6 ये क्या किया है? ये तो दिस आई वाज डूइंग विद द फार्मूला, वो काम नहीं किया। ये थोड़ा फार्मूला का थोड़ा एक बार चेक करना पड़ेगा, ये फार्मूला बनता कैसे है, क्योंकि हाँ, यहाँ तो मैं यही मैं भी सोच रहा था ऐसे ही करना पड़ेगा। ये तो सही, ये तो अभी करेक्ट तो तरीका है, ये तरीका करेक्ट है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट आया इसी का पैदा, इसी का बाप है। अब तो करना कैसे, ये जरा बेटा, ये 2.5 अपॉन कितना आया है एनुअली है, तो ये थोड़ा ये चीज तो इसमें समझ। 8,000 इंटू 20 अपॉन 100 इंटू 2 होना चाहिए। नहीं नहीं, 1 ईयर ना, कंपाउंड कंपाउंड ईयरली, एक साल करना है, एक साल का, 1 साल का इंटरेस्ट को जोड़ देना है, और वो अमाउंट वो आप बोल रहे हो 2 साल का हो जाए, फिर वो दैट बिकम 2 ईयर। आप 2 ईयर का उसमें ऐड कर देना, 2 ईयर उसमें 2 ईयर का निकाल लेंगे, तो 2 ईयर का, तो 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा ना भैया ये। अगर यहाँ पर आपने कर दिया, ये यहाँ देखिए, एक साल का इंटरेस्ट क्यों लिया है इसमें? एक साल का इंटरेस्ट लिया, फिर आधे साल का और ले लिया। हाँ देखिए देखिए, बात तो समझिए। लेकिन अगर टाइम तो 2.5 साल का इसमें लिखा ना कि अमाउंट सम इज सेम टाइम एट 2 तो टाइम तो वही लेना 2.5 साल का। तो तो हम यहाँ पे 1.5 साल का निकाला है नहीं इनकम नहीं, पाउंड इंटरेस्ट।
नहीं नहीं नहीं, देखो ये ऐसा नहीं। ये देखो, ये जो पहला, ये पहला पार्ट, ठीक है, ये क्या है, ये पहला पार्ट, ठीक है। फिर हाँ ये इंटरेस्ट आया, मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया दूसरा, ये हाँ सेकंड हाँ ईयर, हाँ। ठीक है। एक फिर साथ मैं, 2 साल का, एक साथ नहीं जा सकते थे क्या, दोनों साल का? नहीं नहीं नहीं, वही तो बात है, वो दैट विल बिकम द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर भाई। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर निकाल रहे हैं आप। अगर दो कर देंगे उसका वहां जो पर, यहाँ दो उसका कर जो देंगे। उसका प्रिंसिपल अमाउंट से जो इंटरेस्ट आया वो ऐड करके उसके बाद करा है। चल देखो, मतलब यहाँ पर 20%, नहीं, आ गया समझ में, आ गया आ तो गया। टू करे, ठीक है। 20 × 5 100, तो 5 किया, 16 × 5 = 80, ठीक है। 3200 आ गया इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2 ईयर का, 3200 रुपया। अब इसको अगर आप करेंगे तो क्या आएगा, 8 3 11 2 आएगा। ये आ गया 11,200, ये आपका आ गया क्या, ये आपका आएगा। तो ये आंसर, देखो आंसर इससे मिले, अब ये निकला है। अब इसका अगर आप करते हैं आप 20%,